Hello friends, today we are going to revise the certificate in guidance and counseling, and today we are going to do the fourth book NES 104. In NES 104 we are having the 8th unit. So firstly we will talk the first unit. The first unit is related to the introduction to socio-emotional development in children. Here we are going to discuss about the socio-economic development मीन्स कि अगर एक बच्चा 6 से 12 ईयर्स का होगा उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होंगी. दिस इज़ द टाइम पीरियड where the child growth is leisurely pace but the growth in the preschool period is very fast. So what are the characteristics at this stage? The first characteristics is here कि इस एज में जो बच्चा जो होगा वो लेस डिपेंडेंट होगा अडल्ट के ऊपर because he developed a peer groups of friendship. It means they actively participate physically and enjoy the playing pranks, and some of which become the cause of the punishment for them also. Another important characteristics क्या होगी? That is the age of sex identification. इट मीन्स जो गर्ल्स होगी वो गर्ल्स को चूज़ करती है, बॉयज़ जो होते हैं वो बॉयज़ को, मीन्स दे आर एबल टू चूज द सेम सेक्स आइडेंटिफिकेशन. द नेक्स्ट and the most important characteristics is here the children is having the knowledge, the facts about their physical and the social work, and children of this age able to get the differentiate between the play and work, and this the work is mainly associated with their daily routine also. Another important क्या characteristics होगी, here the child is having the activity and the interest, और जो भी एक्टिविटी और इंटरेस्ट होगा दैट इज़ रिलेटेड टू देयर ब्रॉडर सोशलाइजेशन, मीन्स दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. नाउ इन दैट लेट चाइल्डहुड जो बच्चा जो होगा कुछ स्पेसिफिक जो नेसेसरी जो स्किल होगा that is must for the self-reliance also. What are these basic necessary skill? The first is here the child is having the development appropriate, dependent and independent. Means कि जो बच्चा होगा अपने से adult को देखेगा किस तरीके से जो adult है they are doing the care, belongingness and choose their clothes, and even they are able to play with their peer group also. Another important skill क्या होगी, here the child is getting the appropriate the pattern of receiving of the affection. Another important skill की क्या बात कर सकते हैं, the child is having the some social group and they are having a sense of belongingness. बच्चा कुछ जो rules होगा, regulation होगा, morality हो गया, the child is able to learn. Now the another important skill is here, he is able to learn the physiological and biological sex role also. This is the time period where the child is having the physical and the motor changes, and here the motor changes is relevant to the new and the refined motor skills. Another important skill is here he learn and understand. वो क्या learn करता है, क्या understand करता है the physical world, and now he is able to appropriate, able to discuss, develop the appropriate symbols to communicate and interact with the others. The most and the major important characteristics here, the child is able to recognize the appreciation. अब बच्चा क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट को थॉरली ऑब्जर्व करेगा एंड ही इज़ हैविंग अ साइंटिफिक अप्रोच विच इज़ डेवलप एट दैट टाइम पीरियड. अब एक लेट चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम पीरियड दैट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ द 5 ईयर एंड दैट इज़ टिल द एज ऑफ 12. तो यहाँ बहुत सारी जो डेवलपमेंट होगी बच्चे के अंदर प्लेस करेंगे. द फर्स्ट इज़ द फिजिकल डेवलपमेंट, उसका जो हाइट है, वेट है, बॉडी प्रपोर्शन है, इवन जो मसल की ग्रोथ है दैट इज़ हैपन. इवन दैट इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पर उसकी जो परमानेंट जो टीथ होंगे वो डेवलप हो जाएंगे, उसका जो नर्वस सिस्टम होगा उसकी ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी. But now the child is able to get the complete development of the organs and the motor organs. Another important characteristics here that is relevant to the development is that in intelligent development. Here that can be the intellectual development. बच्चे का जो माइंड होगा वो डेवलप होगा. जब बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है इट मीन्स द चाइल्ड इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंग्वेज. तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी. जहाँ बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रहा है दैट इज़ रेलिवेंट टू द वोकैब ऑल्सो. तो यहाँ जो बच्चों के वर्ड्स होंगे, वोकैब होंगे, दैट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड.
Another, the child become very curious. This is also relevant to the intellectual development. बच्चे की अपनी जो थिंकिंग होगी, कंसेप्ट हो गए, इवन जो इंटरेस्ट होगा, दैट इज़ टोटली डेवलप एट द टाइम पीरियड ऑल्सो. ना द इमोशनल डेवलपमेंट, जब बच्चा 5 से लेके 12 ईयर तक ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, तो चाइल्ड के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं. नाउ द चाइल्ड इज़ एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन. उसके खुद के जो सेंटिमेंट्स होंगे वो डेवलप होंगे, कॉम्प्लेक्सेस वो अपने आप में फ्रेम करना स्टार्ट कर जाएगा. नाउ द सोशल डेवलपमेंट, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा जो है ग्रुप में प्ले करना स्टार्ट कर जाता है. अपना जो ग्रुप बनाएगा, कुछ टीम ग्रुप्स को बनाएगा, ग्रुप में एडजस्टमेंट को सीखेगा, ग्रुप लीडरशिप को सीखता है. और ये सारी जो चीज़ें जो होंगी दैट इज़ डन थ्रू द प्लानिंग एंड द सोशल कॉन्साइसनेस. अब यहाँ पे बच्चे की क्या क्या नीड्स होगी. अगर मैं नीड्स की बात करूँ, हियर वी आर हैविंग द 6 नीड. द फर्स्ट इज़ नीड फॉर एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा, यहाँ पे जो उसकी नीड आई है दैट इज़ रेलिवेंट टू कि क्या उसके जो अडल्ट है, एल्डर्स है, दे आर एबल टू एक्सेप्ट देम और नॉट. सेकेंड नीड इज़ द कॉम्पिटेंस एंड द मास्टरी, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ को देखता है, उसको क्या करता है, दोबारा फिर उसको ब्रेकअप करके उसको दोबारा फिर असेंबल करने की कोशिश करते हैं. नाउ द चाइल्ड इज़ एबल टू कंसीडर हिमसेल्फ द कॉम्पिटेंट एंड द मास्टरी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अब बच्चा जैसे ही बड़ा होगा, नाउ ही इज़ एबल टू डेवलप हिज रिलेशन विद द पीयर ग्रुप ऑल्सो. अब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट भी होगा और डिपेंडेंट. मीन्स दिस इज़ द अनदर नीड, क्योंकि बच्चा जैसे ही ग्रोथ को गेन करता है उसे लगता है कि नाउ आई एम एबल टू गेट ईच एंड एवरीथिंग. बट अडल्ट को क्या लगता है, द चाइल्ड इज़ ओनली अ चाइल्ड. They are always having intention to give the direction. Another is here the reciprocal need. Reciprocal need means whatever the child get, that is giving process. means कि बच्चा जो भी चीज़ें गेन करता है, रेसिप्रोकेट करेगा, जो भी अफेक्शन होगा, हीट होगा, जो अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से वो गेन करेगा. अनदर इज़ अ सोशल कन्फर्मिटी. सोशल कन्फर्मिटी का मीन्स क्या होगा कि बच्चा इस टाइम पीरियड में जो सोशल रिलेशनशिप है उसको एक्सपेंड करेगा. स्कूल्स के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने खुद के जो नॉर्म्स होगा उनको परफॉर्म करेगा. एंड नाउ दे आर एबल टू रिलेट himself with the home also, neighborhood also, classroom also, and the peer group also. I think you are able to understand what is the social emotional development. Here we are having some principle. अब principles क्या होंगे जब हम डेली करेंगे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की. फर्स्ट आपका प्रिंसिपल होगा एम्पैथेटिक हैंडलिंग. मीन जो पेरेंट्स होगा एम्पैथी शो करेंगे, नॉट द सैम्पैथी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इज़ हियर कि जो लेट चाइल्डहुड है, यहाँ एक बच्चे को पूरी रिस्पेक्ट से डील करना है. मीन्स कि जो बच्चा है दैट इज़ नॉट गेट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट. Another important principle what we can say here कि no need to expect them to depend on the adult. means like give them freedom to do the work. this is the important time period. तो मेन हमने क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है कि here the punishment given the less. मीन्स कि जो रिस्ट्रेन है, पनिशमेंट है, वो हमने कम से कम देनी है. और जो अडल्ट है दे हैव टू गिव द टाइम, ट्रबल, ताकि जो बच्चा जो होगा दे आर एबल टू गेट देयर ऑन अपॉर्चुनिटी. बच्चों के लिए हम क्या एक और चीज़ अरेंज कर सकते हैं, पिकनिक्स कर सकते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ताकि जो बच्चा है वो खुद को अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे. बच्चे के अंदर फेथ को डेवलप करना, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होगा, जब बच्चा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अडल्ट को क्या करना है, दे हैव टू ऑब्जर्व. तो बच्चे के अंदर अगर कोई पॉजिटिविटी है तो अडल्ट्स की ड्यूटी क्या, दे हैव टू गिव द रिवार्ड. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, जब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो यहाँ जो जनरलाइजेशन है, कंपैरिजन है, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से हमें कंपैरिजन भी नहीं करनी है. क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को डिमोटिवेटिव फील करता है. हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिकॉग्निशन इन द पीयर ग्रुप, कि बच्चा अपने ही पीयर ग्रुप में अपनी कोई ना कोई पहचान को बचाना शुरू कर देता है. अनदर इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे प्रिंसिपल की जो बात करते हैं दैट इज़ द असेंशियल टू द थिंग्स. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द यूनिट फर्स्ट.